اس میں ہماری جو پاپولیشن تھی اس کے حساب سے جو موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی تھی 3 کروڑ 34 لاکھ. لیکن اس کو ہم ابھی تک سوشل اور ریلیجس ٹیبوز میں لیتے ہیں کہ جی آپ کیسے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں بچے بند کریں یہ کریں. ایک تو بنیادی جو ہے عرف عام میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 22 یا 23 کروڑ ہے، لیکن تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آبادی 27-28 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں مریم حنا اینڈ ویلکم ٹو another meaningful episode of the Liberty Lounge. یہ ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جہاں ہمارے ایکسپرٹس اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں ایسے مسائل کا حل ایکسپلور کرتے ہیں، نئے پرسپیکٹیو اور نئے آئیڈیاز سامنے لے کر آتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن ان پاکستان، یعنی کہ بڑھتی ہوئی آبادی، جو کہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم الغنی سیتو صاحب، جو 32 سال تک گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. آپ نے سیکریٹری ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ سرو کیا ہے. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عبدالسلام دادا بھائی، جو کہ ایک ویژنری بزنس لیڈر ہیں اور بہت بڑے سپورٹر ہیں یوتھ ایمپاورمنٹ کے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مسٹر ذوالفقار حالب پٹا صاحب. آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور آپ ایک کالمسٹ بھی ہیں. تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، میں آپ سے پہلا سوال کروں گی کہ پلیز ایکسپلین کیجئے پاکستان میں یہ پاپولیشن ایکسپلوژن کیا ہے. مریم، تعارف کرانے کا شکریہ. جی، بڑھتی ہوئی آبادی، ان کنٹرول پاپولیشن پاکستان کا ایک بہت ہی سنجیدہ اور سنگین مسئلہ ہے. اور اگرچہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 22 یا 23 کروڑ ہے، لیکن تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آبادی 27-28 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. اچھا، اب اس بڑھتی ہوئی ان چیکڈ آبادی کے فیکٹرز کیا ہیں، ان کی کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ آبادی اتنی ایکسپونینشلی ایکسپلوڈ ہوئی ہے. اس کے لیے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی سینئر انٹلیکچوئلز، بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈز میں بہت زبردست کام کیا ہے. ڈاکٹر نسیم الغنی سیتو صاحب حکومت سندھ کے ساتھ 32-33 سال وابستہ رہے ہیں. ذوالفقار حالب پٹا صاحب جو کہ ایک ریسرچر نہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور تقریباً 14-15 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. تو میں شروع کروں گا ڈاکٹر نسیم الغنی سیتو کو، اور پھر ہم اس ڈسکشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جی، السلام علیکم بھائی، آپ کی بہت مہربانی. اصل میں پاپولیشن کا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، اور ہم اس کو ٹریس بیک کرتے ہیں. جب نیا پاکستان بنا تھا اس وقت ہماری پاپولیشن کیا تھی، اور چونکہ اس وقت ہمارا پاکستان جو تھا وہ مشترکہ پاکستان تھا جس میں بنگلہ دیش شامل تھا. تو 1951 کی جو سینسس تھے اس میں ہماری جو پاپولیشن تھی اس کے حساب سے جو موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی تھی 3 کروڑ 34 لاکھ، اور جو بنگلہ دیش تھا اس کی آبادی تھی 4 کروڑ 20 لاکھ. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں 2023-24 میں موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ ہماری جو لیٹسٹ سینسس میں، اور بنگلہ دیش کی آبادی ہے 17 کروڑ اور کچھ لاکھ. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ بڑی ہے، جو کہ 51 کے سینسس میں کم تھی، اور اب بنگلہ دیش کی آبادی اس سے کم ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش نے کچھ ایسا کیا ہے جو ہم نہیں کر پائے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے پہ، جو انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے، گپ شپ کریں گے تو اس کو بتائیں گے کہ ایسا کیا کیا ہے انہوں نے جو ہم نہیں کر پائے. تو ذوالفقار بھائی، آپ ذرا اس پہ بتائیے پہلے کہ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان جو نہیں کر پا ہے پاپولیشن پہ کنٹرول. تھینک یو سیتو صاحب. پہلے تو میں کہوں گا کہ جو 1-2 پروگرام پہلے ہوئے ہیں تو انتہائی یہ فروٹفل ڈسکشن ہے، فوکسڈ ہے، اور یہ جو ٹاپک وائز ہم جا رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. اور لوگ ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ
इतने मामला चल रहे हैं, बजट आ रहा है, जंगों के मामला हैं, तो पॉपुलेशन पर क्यों? तो मेरी ज़ाती राय ये कि जो भी हमारे समाजी, इक़्तिसादी या सियासी मसाइल हैं, उनकी बुनियाद, चूँकि वो लोगों से जुड़े हैं, तो लोगों का कम होना, ज़्यादा होना, उनकी पॉपुलेशन एक बुनियादी फैक्टर है। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर डिस्कशंस में इन चीज़ों पर हम कम बहस करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने इस मौजू को लिया। सर, मैं एक दो स्ट्रक्चरल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे दादा भाई साहब ने अपने इंट्रो में कहा कि पॉपुलेशन इतनी है बता रहे हैं, लेकिन इतनी है, तो ये इस ओपिनियन का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो डेटा अवेलेबल है पॉपुलेशन और किसी भी चीज़ का, वो पाकिस्तान में इतना नॉन रिलायबल है, और फिर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ इंटरेक्ट है, तो हम अपना कॉमन सेंस, रोज़मर्रा की इंटरेक्शन और डेटा को जब कंपेयर करते हैं, तो फिर हम कॉमन सेंस में कहते हैं कि जी ये डेटा इस तरह है, और हम जो है समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो एक तो जैसे जो डेटा आजकल कोट हो रहा है वो वही सेंसस वाला हो रहा है कि सेंसस में 2.14 मिलियन लोग हैं। तो अब देखना ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो जहन में रखने की ज़रूरत है। एक तो जो कल्चरल, सोशल, रिलीजियस टेबूज़ हैं, मैं उसको पहले कहूँगा कि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वाकई जो है पॉपुलेशन या औलाद देने की ज़ात अल्लाह की है, लेकिन उसको हम अभी तक सोशल और रिलीजियस टेबूज़ में लेते हैं कि जी आप कैसे लोगों से कह सकते हैं बच्चे बंद करें, ये करें। एक तो बुनियादी जो है मैं समझता हूँ। उसके बाद जो चूँकि पॉपुलेशन अकाउंट फॉर एग्जैक्टली नहीं है, तो नतीजे में जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं या जो सोशल डेवलपमेंट का जो पूरा एक चंक है, वो हमें, फॉर एग्जांपल, हमने जिस इलाके में इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन सेंसस में 10,000, टेक्निकली वहाँ 30,000 लोग हैं। तो 10,000 लोगों के लिए जब आपने सिवरेज, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये पूरा सोशल जो एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, वो तो ज़ाहिर प्रेशर में आएगा। 10,000 लोग की जगह वो 30,000 यूज़ करेंगे, तो वो सोशल डेवलपमेंट का पूरा उससे जुड़ा हुआ है। फिर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ का मसला है। पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ में अभी भी पॉपुलेशन, हम समझते हैं कि लोग खुद ही आएंगे और खुद ही चले जाएंगे, ना हम कोई उस पर चेक रखेंगे, ना लोगों को उसके लिए कोई एजुकेशन देंगे। आइडियली दुनिया का ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड और जो दुनिया का कहते हैं कि काबिल फ़ख्र जो डेटा है, जो ममालिक 1.2 ग्रोथ रेट पर है, कहते हैं कि जी ये अच्छा मुल्क है और इसको तमीज़ आती है कि पॉपुलेशन को कैसे आगे बढ़ाना। हमारा कोई कहता है 2.4 है, कोई कहता है 2.6 है, कोई कहता है 2.8 है। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज़ें हैं: सोशल, कल्चरल, रिलीजियस टेबूज़, सोशल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ और पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बुनियादी फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। जी ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें चाहूँगा कि अपना आपके साथ तजुर्बा शेयर कर लूँ। 2017 में ये सेंसस हुए थे, तो मैं उस वक्त सिंध का डीजी था, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। तो मुझे इसका पता है कि किस टाइप की, चूँकि एक्चुअली तो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये सेंसस करवाया था, लेकिन हम भी चूँकि उसके पार्टनर थे सिंध वाले, सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले। तो एक्चुअली ये जो 2017 की फिगर जो अब्दुल सलाम ने उठाई, वो 2017 की फिगर है, ये जो हम पॉपुलेशन बता रहे हैं। अब 2017 और 2025 के बाद पॉपुलेशन यकीनन बढ़ रही है ना जिस स्पीड से, तो अभी बढ़ी हुई पॉपुलेशन की अभी सेंसस नहीं है, ये एक्चुअली अनऑफिशियल है, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही होगी ये जो बता रहे हैं। लेकिन जो इस पर तो जो सेंसस हुए थे 2017 पे, उसमें सिंध ने भी एतराज़ किया और कुछ और सूबों ने भी एतराज़ किया। एतराज़ की वजह ये थी कि उस वक्त जो सेंसस हुई थी, और एक्चुअली यूएन का एक इदारा था, उसने भी एतराज़ किया। आमतौर पर जो सेंसस होता है, वर्ल्ड ओवर एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं डी फैक्टो, कि जितने लोग इस कमरे में हम अगर बैठे हुए हैं इनको गिना जाए। तो ये है कि भाई कराची में या सिंध में जितने लोग अभी हैं अवेलेबल डेट ऑफ सेंसस पे, उसको उतना ही गिना जाए। लेकिन एक्चुअली उस वक्त चूंकि सवात में ऑपरेशन हो रहा था और बाकी जगहों पे केपीके में ऑपरेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर केपीके खाली हो जाएगा। तो उन्होंने ये किया कि इसको डी जोरे पे चले गए और शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर उन्होंने सेंसस किया। उन्होंने कहा कि जिसका जहाँ का शनाख्ती कार्ड है उसको हम यहाँ पे रीचेक करके वेरीफाई करेंगे और उसको वहीं पे गिनेंगे फैमिली के साथ। तो इस वजह से थोड़ी सी फिगर जिसपे कराची के भी कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं और एक्चुअली गिने कम गए, तो उसकी मेन वजह ये थी कि वो डी फैक्टो था। और ये 2 तरीके होते हैं गिनने के, डी फैक्टो, डी जोरे। तो इस पर तो बात जो 2017 का जो सेंसस हुआ था वो डी जोरे नहीं हुआ था, डी फैक्टो हुआ था, जिसपे यूएनएफपी ने एतराज़ भी किया था। उस मीटिंग में मैं था और जिसपे ये एतराज़ात हुए थे और इस्लामाबाद में आई एम प्रिवी टू इट कि ये क्या हुआ था और वजूहात क्या थी। ऑलमोस्ट सेंसस बिल्कुल एक्यूरेट था और बिल्कुल मोहल्ले, गली जो भी थे वो एक्यूरेट थे,
कहीं कहीं पे बड़े मज़ाक़ खेज़ लोगों ने रिपोर्टिंग की थी कि एक छोटे 2 घर के फ्लैट में 22 लोग रह नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी और पॉपुलेशन दिखाने के लिए की थी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है। तो जब भी सेंसस करते हो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो अब जो है हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं, और अगर ये कोई इशू है जिसके साथ हमारे उलमा को कोई मसला है तो थोड़ा सा इसको सलाम बताएं कि उलमा को कोई इशू है इस प्रॉब्लम में। नसीम साहब, जैसे कि जुल्फ़िकार हाले पोटो साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि एक सोशल, कल्चरल, रिलीजियस टेबू है। मैं सबसे पहले तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ये कहना चाहूँगा कि हम उन अवामिल की तरफ जाएं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आउट ऑफ हैंड हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारे यहाँ हाई फर्टिलिटी रेट है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ है लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ लो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और चौथी चीज़ हमारे यहाँ एक रिलीजियस टेबू है। अच्छा, अब ये तो हो गए वो फैक्टर्स जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। The most serious part of this issue is कि हमें इस बात का इदराक और एहसास नहीं है कि ये बढ़ती हुई आबादी, जिसको मैं बिल्कुल इम्प्लोजन भी कहूँगा, एक्सप्लोजन भी कहूँगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे वसाइल पे, हमारे रिसोर्सेज पर क्या डेंट डाल रहे हैं, क्या डेंट डाल रहे हैं, डालते रहे हैं, डाल रहे हैं और डालते रहेंगे इफ़ इट गोज़ अनचेक्ड इन अ सिमिलर फैशन। मैं अब इस बात, मैंने चीदा फैक्टर्स तो डिस्कस कर लिए हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं ये चाहूँगा कि जुल्फ़िकार भाई जो हैं वो इस बात पर अपने तासुरात का इजहार करें कि हाउ टू कंट्रोल इट, how to manage it, how to let the people who matter understand कि चाइना की तरह अगर हम पॉपुलेशन को अभी भी चेक नहीं करते, ये एक बहुत संगीन मसला बन चुका है और मजीद बनेगा। तो जुल्फ़िकार भाई, we need your inputs। थैंक यू सलाम भाई, आपने इंतहा इम्पोर्टेंट बात भी की और मुझे मौका दिया कि मैं इस पर इनपुट दूं। तो मेरी आदत है कि मैं ये जो हैं न्यूमेरिकल से ज़्यादा कोशिश होती है कि मोटी मोटी बातें हों ताकि कुछ बुनियादी चीज़ें मैं भी समझूं और जो हमारा ऑडियंस होगा उसको भी, उनके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूं। मैं अभी ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया के जो जंग के मामला चले, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल रीडिंग्स की उसमें, और मैंने देखा कि जो एक पॉइंट एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे हमारे मुखालफिन, तो उसमें एक ये था कि चूंकि सोसाइटी सो डिवाइडेड ऑन एथनिक लाइन्स, सेक्टेरियन लाइन्स, कम्युनल लाइन्स, काफ़ी चीज़ों पर, तो ये एक वनरेबिलिटी है, इसको हम इजीली एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। लेकिन जब मामला हुआ तो लोगों ने फौरन कहा कि ये सारे हमारे इंटरनल मामला हैं, ये हम आपस में तय कर लेंगे, फिलहाल हम जो है वो एक आवाज़ हैं। तो ये एक फिनोमिनल यूनिटी थी जो बड़े दिनों के बाद पाकिस्तान ने आपस में देखी। तो मैं उन्हीं दिनों में सोच रहा था जब ये मौजू डिस्कशन में आया कि पॉपुलेशन पर गुफ्तगू करनी चाहिए, तो मैंने कहा कि क्या तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन प्लान करे, एक बहुत लाउड एंड क्लियर, जिसमें वो कहे, जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो, आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हो, इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्व हो, और वो कहें कि जैसे वो जंग है, ये भी एक बहुत बड़ी जंग है, इसको हमने मिलकर चलाना है और आए पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें। रिलीजियस अब तो सर इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, पॉडकास्ट का। पहले तो ये होता था कि हम एक टीवी चैनल पर इंतज़ार करें कि हमारे लीडर का मौक़िफ़ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब तो हर किसी के हाथ में इस मोबाइल में अपना टीवी है, अपना अखबार है। तो एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाकर स्टेट लेवल पर, उस पर सिटीजन्स को इंगेज करके, पहले तो मेरी ये शुरू से ये ख्वाहिश है कि इसको वार फुटिंग पर एक नेशनल कैंपेन के तौर पर लेना चाहिए सबको, कि जी आए मिलकर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, वरना वसाइल वैसे ही हमारे शेलिंग हो रहे हैं सर। हमारी जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन के जो सारे मीन्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप हाल देख रहे हैं। तो जब वसाइल पर इतना प्रेशर है तो सारे ये कौमी अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को, बच्चों को बचाएगी। वो है, उसके साथ पर सप्लीमेंट्री आइटम्स हैं
जैसे सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करे गवर्नमेंट, चैनल्स इस्तेमाल करे, रिलीजियस जो है जैसे फ्राइडे सरमन्स हैं, ईद आ रही है उस पर जो मौलवी हजरात हैं रिलीजियस उनके थ्रू गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदें ऐलान करवाएं और कंपलसरी कर दें हफ्ते में गवर्नमेंट कोई एक दिन ऐसा जिसमें आधा एक घंटा गवर्नमेंट मशीनरी लेजिस्लेटर सब लोग मिलकर। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इंतहाई रिजॉल्व वाली कौम है। अगर इसको नेशनल एजेंडा, चूँकि अभी तक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर ये नेशनल एजेंडा के तौर पर नहीं है, तो उसको करेंगी। फिर उसमें एजुकेशन, दूसरे मामला वो थोड़े लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म है, लेकिन ये इमीडिएटली कर जाए तो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ सकता है, मेरी ज़ाती राय। सर मैंने आपके सवाल की जवाब देने की कोशिश की, अब शैतो साहब से पूछते हैं। जी बिल्कुल, आपने जुल्फ़िकार बिल्कुल सही बात बताई। एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि वाकई क्या ये मजहबी कोई टैबू है कि नहीं है। तो हम जाएंगे, हम और जो कामयाबी की स्टोरी जिसको सक्सेस स्टोरी कहते हैं, मुस्लिम ममालिक में इसके ऊपर क्या किया है, हम देखते हैं कि वो इस पर क्या कर चुके हैं, उन्होंने किस तरह एंगेज किया है। और फिर सबसे बड़ा जो एक सुन्नी हमारे फ़िक़्ह में जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी को जो इजिप्ट में उसको बड़ा माना जाता है, तो उसकी फतवा जो है वो ये है कि बर्थ स्पेसिंग के बच्चे देर से पैदा करने की उनकी फेवर में उन्होंने बर्थ स्पेसिंग में एक फतवा दिया हुआ है। 3 ममालिक की बड़ी कामयाबी की स्टोरीज हैं। एक है इंडोनेशिया जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुस्लिम मुल्क था, और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के टाइम पे हमसे ज़्यादा पॉपुलर था, और ईरान। इंडोनेशिया ने क्या किया, उन्होंने 2 जो बड़े ग्रुप थे मोहम्मदियन और एक दूसरा ग्रुप था उसको इंगेज किया, और उनके थ्रू उन्होंने मौलवियों के साथ डायलॉग किया, और जैसे आपने कहा उनके थ्रू सर्मनाइजेशन की और मीटिंग की, और उनको कहा कि आप ये बताएं कि इसमें कोई ऐसा इस्लामिक प्रोविजन हायल नहीं हो रहा, बल्कि इस पर फतवा दिया उन्होंने। और ये जिस तरह लोग मिलके जिस तरह ना बैठ के एक फतवा देते हैं, चूँकि नया मसला है, उसमें उन्होंने एक फतवा दिया, उसके हिसाब से फिर उन्होंने वार फुटिंग पे जैसे आपने फरमाया काम किया, तो इंडोनेशिया इसमें बड़ा कामयाब हुआ। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा पॉपुलर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमसे अब कम हो गए, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की। एक तो उन्होंने मौलवियों को, मजहबी स्कॉलर्स को इन्वॉल्व किया, उन्होंने दूसरा औरतों को जो कि सोशल मोबिलाइजर के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने जैसे सिंध में भी बाद में उन्होंने किया लेडी हेल्थ फक्के के नाम पे, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, और उसके थ्रू उन्होंने लेडीज़ को एजुकेट किया कि आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, जो पहले से जल्दी से जो शादियाँ होती हैं, जो कि आपको देखा होगा कि अभी भी असेंबली में ये बात हुई कि जल्दी से शादी जो है उस पर कुछ लोगों ने कौमी असेंबली में एतराज़ किया, वो मौज़िज़ हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन उस पर और मज़ीद डिबेट होने की ज़रूरत है कि जल्दी अगर शादी होती है तो जल्दी रिप्रोडक्शन का फेज शुरू हो जाता है, जल्दी बच्चे होते हैं, फिर कई एक बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन एज ज़्यादा होती है। मेरे एक दोस्त थे पुराने बातों में, वो 16 भाई बहन थे एक ही माँ से, 2 शादियाँ नहीं की थी हमारे चाचा ने, लेकिन 16 भाई बहन थे, तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल था, और अब वो असल में नॉर्मल नहीं है, और जिसको हम बताते हैं बड़ी हैरत होती है लोगों को। तो सर ईरान ने फिर क्या किया, ईरान का बड़ा रोल मॉडल है अभी। ईरान ने फिर चूंकि वो मौलवियों की वहाँ पे पहले से हुकूमत थी, तो उन्होंने बिल मिल बैठे और शूरा के थ्रू उन्होंने फतवा दिलाई कि जी इसको हम वार फुटिंग में लेंगे, और फिर उसके बाद अभी ईरान ने बड़ी इसमें कामयाबी हासिल की, और अब ईरान को एज ए रोल मॉडल लिया जा रहा है, तो उसको हम फॉलो करें। और तीनों ये ममालिक जो हमारे, जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे जैसे मुसलमान हैं, उन्होंने इस पर कामयाबी हासिल की है, तो पाकिस्तान में भी यकीन नेशनल डिबेट की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने फरमाया उस पर हम मज़ीद इस पर काम करने की शदीद ज़रूरत है। अब दूसरा हम आप बताइए, इससे कोई फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया नसीमुल गनी साहब। जुल्फ़िकार हाले पोटा साहब ने एक बात दौरान गुफ्तगू कही कि ये एक अभी तक नेशनल वॉर फुटिंग एजेंडा के तौर पर जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। पहले तो हम सिर्फ ये बता दें कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के नुकसानात क्या है। हमारे रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा बोझ है, हमारे हेल्थ सिस्टम पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बेइंतहा बार है, हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मुझे जो दुख है, जो गम है, वो हमारे उल्मा से है
چونکہ کئی دفعہ میں نے کئی محفلوں میں کئی فورمز پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی پالتا ہے، اور میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو بات ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزوں کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ایک تو اگر آپ نے ایران، انڈونیشیا، بنگلہ دیش کی مثالیں دی ہیں، I would like to name China as a successful role model in the subject۔ انہوں نے لیجسلیشن کی اور کچھ حصوں میں ایک بچے کی اجازت تھی، کچھ پروونسز میں میکسیمم 2 بچوں کی اجازت تھی، اور اس سے اوپر بچے پیدا کرنے پہ سیریس سزائیں بھی تھیں، پینلٹیز بھی تھیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان چونکہ دیکھیے جزا اور سزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ ہیومن سائیکالوجی کے عین مطابق ہے۔ ہمیں لیجسلیشن کرنی پڑے گی ایٹ آل کاسٹ آن ٹو سبجیکٹس۔ ایک یہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے وی ول ہیو ٹو لمٹ چائلڈ برتھ۔ جن صوبوں میں آبادی زیادہ ہے وہاں پر ایک بچے کی اجازت ہونی چاہیے، جن صوبوں میں آبادی کم ہے، فار ایگزامپل بلوچستان، وہاں میکسیمم 2 بچوں تک کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سیمینریز اینڈ علماز ول ہیو ٹو بی ٹیکن آن بورڈ، کہ آپ نے عوام الناس کو اس کو جہاد سمجھ کے، جہاد کی طرح آپ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے کہ جناب بچے ہم نے زیادہ نہیں پیدا کرنے، چونکہ ان دی ڈیز ٹو کم ہماری اکانومی، ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری ہیلتھ، ہماری ایجوکیشن اس کو سسٹین نہیں کر پائے گی۔ میں چاہوں گا کہ ذوالفقار صاحب بھی اس بات کو آگے بڑھائیں۔ اور سر بالکل درست کہا آپ نے۔ جو اب تک یہ ڈسکشن ہوا ہے اس میں میرے خیال میں یہ باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ اس کو پرائرٹائز کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایجوکیشن میں نالج اس میں اس کو بڑھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب گفتگو چل رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو متفقہ ایک آئیڈیل شخصیات ہیں، اور اس سے کافی لوگ ہم جانتے ہیں جن کی فیملی پکچرز دیکھتے ہیں، ان کے 1-2 بچے، وہ رول ماڈلز ہم سامنے لا سکتے ہیں کہ جی جب اتنے وسائل ہوتے ہوئے ان لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ 2 بچے اور پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ جو وومن ہیلتھ ہے اس کے کیا ایشوز ہیں، آپ کے ریسورسز کے کیا ایشوز ہیں، ان بچوں کی جو توجہ ہے، تعلیم ہے، ان کا فیوچر ہے، کیریئر ہے، تو یہ چیزیں اس جو قومی ایجنڈا کا ڈیولپ ہوتا ہے، اور جیسے لبرٹی لاؤنج سے بھی یہ میسج جائے گا، نیشن کو بھی جائے گا، اور ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کے تھرو اس کی اسٹریمنگ ہوگی، تو صاحب جو اختیار اور اقتدار ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور دیکھ پائے گا کسی دن سماجی براڈ کاسٹ کو، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو پرائرٹائز کریں۔ اور وہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ انف از انف، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، مزید آنے والے سال انتہائی خطرناک ہے، خشک سالی ہے، ڈراؤٹ ہے، جیسے پانی کی شارٹیج، میں ساری چیزیں پھر ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اتنے ہمارے معزز دوستوں نے، سیتو صاحب نے، دادا بھائی صاحب نے انتہائی انلائٹن جو ہے نوٹس شیئر کیے، تو وسائل پر بہت پریشر ہوگا، پر ہم انہی بچوں کے سامنے بیٹھے رہیں گے، 2 بچوں کے لیے خدا نخواستہ کھانا ہوگا، اور کھانے کا بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو اسٹلٹنگ کے معاملات ہیں یا جو نیوٹریشن کے معاملات ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ صرف کھانا نہیں چاہیے، کوالٹی فوڈ چاہیے، کوالٹی واٹر چاہیے، تو خود کوالٹی کی جو دنیا میں گلوبل کرائسس ہے اس کے 3rd ورلڈ کنٹریز اور پاکستان جیسے ملک تو بہت زیادہ اس میں بچوں کو جو کھلا رہے وہ صحت مند نہیں ہے، تو اسی لیے جتنا وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ فیصلے لیں گے، وہ ہماری انفرادی جو گھر کا یونٹ ہے، ہاؤس ہولڈ، اس میں بھی برکت لائے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو قوم کے لیے یا ملک کے لیے جنرل گڈ کا جو ہے اس میں بھی ہماری طرف سے کنٹریبیوٹ کرے گا۔
सदर साहब आप कुछ जी बिल्कुल, एक वजह थोड़ी सी कम डिस्कस हुई कि यहाँ पे बच्चे लोग क्यों पैदा करते थे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह जो थी वो था हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। तो लोग कहते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कम से कम 10 में से 6 तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये थी, लेकिन अब चूंकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है। तो अब एक तो हमें ये 3 जैसे ममालिक है हमारे मुस्लिम बिरादरन ममालिक, उनसे उनकी जो है ना कामयाब स्टोरी से हमें सीखना चाहिए, और हमें उल्मा को बहुत ज़्यादा इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के उल्मा इतने ज़्यादा इसमें अभी एक्टिवली कोई रोल प्ले नहीं करते। जिस तरह हमने पोलियो वैक्सीनेशन में उनको हमने एंगेज किया और उनके फतवा दिलाए, तो अब पोलियो के इंशाल्लाह केसेस बड़े कम होते जा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन जो कोई एक्सप्लोजन है, इसमें हमें उल्मा को लाजमन इंगेज करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके ब्रदरन, आपके भाई उल्मा जो कि इंडोनेशिया में हैं उनके ये ख्यालात हैं, जो कि बांग्लादेश में उनके ये ख्यालात हैं, जो कि ईरान में उनके ये ख्यालात हैं। तो हमारे जो आपके जो ख्यालात हैं, अगर थोड़े से वो मिसगाइडेड हैं या वो समझते हैं कि हमारे ख्यालात किसी और पे हैं, तो लेट्स हैव अ नेशनल डिबेट, उस पर बहस करना चाहिए। और ये एक इंतहाई अहम है इशू जिस पे बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह जब इसको देंगे तो इंशाल्लाह कहीं से स्टार्ट लेंगे तो बहुत टाइम के बाद जाके इसके असरात आएंगे। तो पहला स्टेप शायद हमने लिया होगा, बड़ा फीबल सा, बड़ा कमज़ोर सा के डिपार्टमेंट बने हुए हैं पॉपुलेशन वेलफेयर के, लेकिन ये काम जो है उस क्वालिटी का नजर नहीं आ रहा। जी सदर साहब, ज़बरदस्त बातें की आपने। मेरे ख्याल में हम जाते जाते गवर्नमेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करें, ये जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस का बिल पास हुआ। आपने देखा कि असेंबली में हुकूमत के जो अलाइज हैं, मजहबी जमातों के लीडरान, उन्होंने सख्त मुखालफत की, तकारीर भी की, लेकिन चूँकि ये नेशनल क्राइसिस है तो ज़ाहिर है वो उनको मना लेंगे, लेकिन हुकूमत ने नोटिस लिया। तो मेरे ख्याल में हमारे जो हुकूमत के सही इक़दाम हैं हमारे लाउंज की तरफ से, सलाम साहब, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई, आपने बिल्कुल सही बात की। सहर हासिल गुफ्तगू हुई है on a topic which needs national emergency measures। आज की गुफ्तगू को समराइज कर लेते हैं, चूँकि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है बॉटम लाइन सुनने की और बॉटम लाइन पढ़ने की, तो समराइज कर लेते हैं ताकि अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को बॉटम लाइन जाए। Population is a national crisis. If it goes unchecked, it will be a national catastrophe. Number 3, we need to have legislation, laws preventing population explosion. Number 4, we need to have all ulama, all maktab-e fikr on board. Number 5, we need to draw similarities between Indonesia, Bangladesh, China for that matter, और हम इसको एक वॉर फुटिंग पे जब तक नहीं लेंगे, we will have serious and damaging consequences। ये एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, should be taken up, should have been taken up decades ago, बट चले बेटर लेट देन नेवर, अब किया जाए। आज के इस मीनिंगफुल डिस्कशन से हमें बहुत सीखने को मिला, और लिबर्टी लाउंज में इस किस्म का डिस्कशंस और इस तरह के टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे, इस सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हमारे काम आएगी। हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।